دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور ایک خاتون کھڑکی کھول کے فوجیوں کو کہہ رہی کہ تم یزید ہو. آج فوج اور عوام میں اتنی دوری پڑ چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. رانا عبدالرزاق صاحب ہے. رانا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے قتل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے، بالکل ہوئے. آپ کے خیال میں کوئی پلان تھا ان کا پہلے سے؟ بالکل انہوں نے پلان سے سارا کچھ کیا ہے. رانا صاحب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لاشیں کیوں پھر غائب کی جا رہی ہے. ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ عدالتیں ان کی ہے، فوج ان کی ہے، ادارے ان کی ہے، تو کس چیز کا خوف ہے؟ پھر عوام کو یہ ویسے نہیں جینے دیتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پلان تھا، اگر کوئی ان پر حملہ آور ہوتا تو یہ اس کا دفاع کرتے تو اور بات تھی. کوئی حملہ آور ہوا ہی نہیں ان پر. انہوں نے دفاع نہیں کیا، انہوں نے حملہ کیا ہے، لوگوں کو بے گناہ مارا ہے. تو اور لاشیں ترتیب سے آرگنائز ہو کے انہوں نے غائب کی ہیں. یہ سارا کام پلاننگ سے ہوا ہے، یہ آپریشن ہوا ہے. آنے والے دنوں میں کیا دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا اور ہمارے جو پنجاب ہے اس کے حالات؟ بغاوت، خون ریز جنگ ہوگی. سول جنگ کی طرف جا رہا ہے ملک. مطلب خانہ جنگی کے قریب پہنچ چکے ہم انشاءاللہ. اچھا، بڑی دیر سے ہم توجہ دلا رہے تھے، میں بھی اپنے پروگراموں میں، کہ فوج کو یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. کیا وجہ کہ یہ ان کو خون لگ چکا ہے؟ اس سے پہلے بلوچستان میں بھی انہوں نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، سندھ میں بھی کیا، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی. تو رانا صاحب یہ تو رکنے والے نہیں ہیں. نہیں، یہ انڈیا اور امریکہ کے ایجنڈے کو پورا کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں گے؟ کوئی اس طرح کی باتیں لیک ہو رہی ہیں. اور یہ ایسا ہی ہوگا. یہ دیکھیں، یہ جو پاکستان کے دشمن ہے نا، وہ عمران خان کے خلاف کام جو کروا رہے ہیں، اس کو مروائیں گے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ملک ٹوٹنے والا ہے. صاحب اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے. اتنا بڑا سانحہ گزرا، کوئی مولوی نہیں بولا، کوئی مفتی نہیں بولا، کوئی بندہ نہیں بولا. کیا وجہ؟ پاکستان میں کوئی بندے کا پتر ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. کوئی مولوی ہے؟ کوئی لیڈر ہے؟ کوئی بیوروکریٹ ہے؟ کوئی سچ بولنے والا ہے؟ منافقین ہیں، سارے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ڈاکو ہیں، ملے ہوئے ہیں. کدھر گیا وہ فضل رحمان؟ کدھر گیا وہ آپ کا جماعت اسلامی؟ کدھر گئی وہ باقی پارٹیاں؟ کوئی بھی نہیں بول رہا. تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی شہری بولا ہے؟ کوئی شرافیہ بولا ہے؟ کوئی شریف آدمی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بولا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ یہ منافقین ہیں. یہ صحافیوں کو پلاٹ کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں؟ اعلان کر دیا ہے مریم نواز نے کہ ان کو پلاٹ دیے جائیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ کبھی سچ تو بولا نہیں وہاں پہ. مریم نواز کو تو سجدے کیے ہیں نا. جو مریم نواز کو سجدہ کرے گا اس کو پلاٹ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اپنے سسٹم کے مطابق نہیں چل رہی پاکستان میں. نہیں، سارا چنگیزی اور ہلاکو خان کا دور آ گیا ہے. ایسے نہ عدالت ہے وہاں، نہ کوئی انصاف ہے، نہ جسٹیفیکیشن ہے، نہ کوئی انسان ہے. سارے ڈاکو چور ملے ہوئے ہیں، ملک کو اقتدار کے کو چمٹے ہوئے ہیں. عمران خان اگر کوئی سچی بات کرتا تو اس کے لوگوں کو بھی جانوں سے مار رہے ہیں. یہ تو تصادم ہے کھلا. رانا صاحب یہ جو حالات ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑی خبریں دے رہی ہے. آپ سوچ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل طور پہ پاکستان کے بارے میں اب یا فوج کے بارے میں کیا خیالات ہوں گے؟ جس طرح آسٹریلیا ہے، کینیڈا کا پارلیمنٹ ہے، اور بھی جگہ پہ 7 ملکوں نے وارن کر دیا ہے پاکستان کو. گارڈین میں مضمون چھپا ہے یہاں لندن میں. ان کی ساری صورتحال باہر آ گئی ہے. لاشوں کا بھی پردہ فاش ہو چکا ہے. ان کی ساری حرکات کو انٹرنیشنل لیول پہ نوٹ کیا جا رہا ہے. یہ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ہمیں دیکھتا نہیں کوئی. آج سارے جمعے کے بعد سارے غیر ممالک میں جنازے ہوں گے ان کے شہداء کے. اچھا، ایک بڑا عجیب سسٹم چلا ہوا ہے کہ سب کچھ نظر آنے کے بعد وجود یہ سب کچھ تبدیل کیوں کر دیتے ہیں؟ الیکشن تبدیل کر دیا، آئین تبدیل کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا تبدیل کرتے جا رہے ہیں. لوگ لعنت ڈال رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لگے ہوئے ہیں. ان کے سر پر خوف سوار ہے. عمران خان کا خوف سوار ہے.
वो इक़्तिदार को चिमटे हुए हैं कि इक़्तिदार न चले जाए, ये इक़्तिदार के साथ ही खुद ही चले जाएंगे सारे। बहुत शुक्रिया राम। खाना जंगी की तरफ जा रहा है, सिविल वार की तरफ जा रहा है मुल्क। बहुत शुक्रिया राम। थैंक यू। कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वहाँ में फौजी जवान थे बॉर्डर के पास, और जब वो वहाँ दहशत गर्दों ने फायरिंग की तो गाड़ी लेके भागे वहाँ से। और वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि मुकाबला करते, मगर पता नहीं मुकाबले की इनमें हिम्मत नहीं थी और अपने लोगों पे ये गोली चलाते। लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि बड़ी देर से मैं ये बता रहा था कि अपनी फ़ौज को, अपने जर्नैलों को होश के नाखन लें, ये ना हो कि अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाए, और वही हुआ। आप देख ले जिस तरह गाड़ी का शीशा नीचे करके, वो वीडियो मेरे पास है, कॉपीराइट्स के इशू होते हैं जिसकी वजह से हम दिखा नहीं सकते। उसने साफ तौर पर ये कहा कि तुम यज़ीद हो, यहाँ अंदाज़ा लगाए। और दूसरी बात ये कि जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने बेचारों ने खाना भी नहीं खाया हुआ था, वो भूखे थे, और उन पे इन्होंने फायरिंग की। अब जो लाशें अभी कोई पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, जो हॉस्पिटल की जो छतें हैं वहाँ से लाशें इधर की उधर कर रहे हैं, और जो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बाद में ये वीडियो आ भी जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, लोग मानेंगे नहीं। ये बर्बियत जुल्म जो हो रहा है, इसकी मेरा ख्याल है लोग समझ के 2-3 महीने बाद लोग भूल जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये लोग भूलने वाले। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तेज़ी के साथ नफरत में इजाफा हुआ। जो लोग फौजियों को गले लगा रहे थे, आज वो इन पाक फौज के जवानों को गालियां दे रहे हैं, और गंदी गालियां दे रहे हैं। 1-2 वीडियो फौज की तरफ से भी अपलोड की जा रही है, मगर उसके नीचे भी लोगों ने लिखा हुआ है कि आप डॉलर के लिए अपने, आपको तो पता ही है कि अमेरिका ने कहा था कि डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं पाकिस्तान। फौज ने अपना जो किरदार था वो इतना गंदा कर लिया कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। नाज़रीन, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी, मसाल सुनी होगी कि रात को कुत्ता भौंक रहा था, तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा बाहर जाके देखो कि ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। वो बेटा उठा और गली में गया, तो आके फिर सोने लगा। तो माँ ने कहा क्यों भौंक रहा था, तो वो कहने लगा ये पिछली गली में था, और उसने दोबारा जनाब कोशिश ही नहीं की चेक करे, जाके सो गया। उसके बाद रात को चोर आए, उनके घर में जो भी था वो चोरी करके ले गए। उस वक़्त माँ ने कहा कि अगर तुम उठ के अच्छी तरह देख लेते ये कुत्ता कहाँ पे भौंक रहा है, तो आज हमारा ये नुकसान ना हो। तमाम सूबों में जिस तरह एक-एक करके वहाँ पे खून बहाया जा रहा है, काश कौम अवाम देख लेती, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, हर जगह पे खून की नदियाँ बह रही, मगर आज तक किसी ने आंखें खोल के ये नहीं देखा कि ये कुत्ता कहाँ पे भौंक रहा है। यही वजह है कि कौम सोई हुई है, कौम को होश ही नहीं आया आज तक। जब तक कौम होश में नहीं आएगी, इस तरह की लाशें उठती रहेगी, इस तरह के जनाजे उठते रहेंगे। मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि जो लोग भी वकला हैं, जिनमें कोई इंसानियत ज़िंदा है, जो कोई इंसानों की औलाद है, उनको चाहिए कि इंटरनेशनल जो अदालत है, क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ पे बाकायदा तौर पर ये फौरी तौर पर केस दायर किया जाए, यूएनओ के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाए, और जो भी लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और दूसरे भी ममालिक, जिन ममालिक में भी आप रह रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में इनकी तस्वीरें भेजें, इनकी वीडियो भेजें, उसमें तर्जुमा करके भेजें। आपको अगर किसी ने मदद करनी है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे मदद की जा सकती। वहाँ पे ना आपकी अदालतें हैं, ना आपके अदारे हैं, ना आपका कोई माली वारस है, जितने मर्जी लोग मर जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये और लोगों को भी मारेंगे। जब खून लग जाता है, वो कहते हैं एक कत्ल किया तो 100 कत्ल किया। दोबारा आज जिस तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आज फिर कोई दहशतगर्दी का हमला किया जाएगा, क्या पता है। मगर हमारे लोगों ने अपनी वैल्यू खुद ख़राब की हुई है। अपने आप को जब आप इतना गिरा देते हैं, सस्ता कर देते हैं, तो फिर आपकी लाशों की भी वैल्यू नहीं होती। वो कहते हैं इनको जला दो, इनको किसी गड्ढे में डाल दो,
इंसानियत का खून ये बहता रहेगा जब तक अपनी कौम को ये समझ नहीं आएगी कि ये कुत्ता कहाँ पे भौंक रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फजल रहमान इस वक्त क्या कह रहे सुनते हैं, ये पहले फिर इस पर पानी को तस्लीम करो, इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं कि हम गोली नहीं चलाना चाहते थे। फिर जब वो डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नतीजा उसके सामने आए। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इस्राइल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगे। कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अकल के नाखून लो, अपनी नाकामी को। नहीं, ये फजल रहमान ने तकरीर तो कर रहा है, मगर प्रॉब्लम इसकी ये है कि इस पर भी कोई इत्मीनान नहीं करता। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मुनाफिक इंसान है। और इसका भी हाथ है, मेरा ख्याल है कि अगर मेरे से पूछे, ये भी तो हुकूमत में शामिल है, इसको भी तो पता था धांधली हुई है, इसको भी तो पता था कि गलत तरीके के साथ ये इलेक्शन होगा। जो बुनियादी चीज़ है वो है इलेक्शन। जब आपकी बुनियाद ही गलत है और जो ऊपर इमारत आपने बनाई हुई है, फिर वहाँ पे आप किससे साथ देंगे? ये है एक अहम सवाल। पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें अभी ये जो साफ फरमा रहे थे, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता कि मदरसों के बारे में दस्तखत क्यों नहीं हो रही। ये मदरसों को भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं साहब। ये अकेले नहीं, जितने भी उलमा हैं, इसके अपने भी आपने रिकॉर्ड देखे, जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर इन्हीं के कहने पे पुलिस की गाड़ियाँ इन्हीं लोगों को लेके जाती थी जो मदरसों में थे, और आपने देखा होगा किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर चढ़ गए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वो है मुनाफिक। आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं। ये है सबसे बड़ा इशू। ये मौलाना साहब भी उसी की पैदावार है, एक मुनाफिक इंसान है। और इस पर भरोसा करके कोई काम ऐसा ना कीजिएगा जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़े। ना तो इसका वालिद मुखलस था पाकिस्तान के लिए, ना ये खुद मुखलस है। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब भी कोई भी मामला तो होते, ये बंदा सबसे पहले बिकता है। इसकी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, नुकसान बेशुमार किया। कभी कश्मीर कमेटी का ये चेयरमैन, कभी कोई, फिर उसको लालच दे के वो लोग इसको भी, अब मैं क्या कहूँ, अल्फाज मुनासिब नहीं है, छोड़ देते हैं। तो वो इसको भी जिस तरह डॉलर में दूसरों को ख़रीदते हैं, इसे भी खरीद लेते हैं, और इससे फिर अपनी मर्ज़ी के बयान दिलवाए जाते। अपनी मर्ज़ी की, कोई इसको नहीं पता कि ये इलेक्शन चोरी हुए थे, चले अब ये बता रहा है। कई दफ़ा इसने ये बात कही। सबसे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का बड़ा है वो है ये कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पे तजारत, मज़हब की तजारत हो रही। मज़हब के नाम पे लोगों का खून बहाया जाता है, मज़हब के नाम पे लोगों के घरों को लूटा जाता है, मज़हब के नाम पे घरों को जला दिया जाता है। ये सबसे बड़े मुजरम जो है, अगर वहाँ पे सियासतदान है तो ये उलमा भी उससे कम नहीं। अगर फ़ौज मुजरम है, जर्नैल मुजरम है, तो ये जनाब मौलाना साहब ने भी कोई मुल्क के लिए ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि आज आके दोबारा, कभी कभी इनको जोश आता है इस तरह की। मेरे साथ कितने लोग प्रोग्राम करते, एक बंदा भी इस पर इत्मीनान नहीं। वजह ये कि बकाऊ माल की कोई इज्जत नहीं होती, कदर नहीं होती।
बकाऊ माल आप जैसे मर्जी खरीद लें, और फिर इनके जो हालात हैं वो आप सबके सामने। ये खुद गैर कानूनी तौर पर कई ऐसी जगह है जहाँ पे कब्जा करके बैठे, मदरसों में बच्चों के साथ क्या होता है ये मैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताता रहा। 8 दिसंबर भी आ जानी है, वो क्या कहते हैं दिल्ली कौन सा दूर है, इसने क्या करना 8 दिसंबर को, हम भी इधर हैं आप भी इधर ही। ये जो हालात बने हुए हैं, किसी सूबे में भी हुकूमत जो है वो जिस तरह इलेक्शन जीते थे उस तरह तो बनी नहीं। आपको कोई फ्री में चीज़ मिल जाए उसकी ना कदरी होती। यही आपने बच्चे देखे होंगे, वालिदैन की जायदाद फ्री में मिल जाती है, वो पिकनिक मनानी शुरू कर देते हैं, याशी में पड़ जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, उसके बाद वो जायदाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर फ़कीरों की तरह फिरते हैं, लोगों से कर्जे लेते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी भी बदकिस्मती यही कि फ्री में इनको मिला हुआ है, ना इन्होंने को पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीत के आ जाती है, उन्होंने पैसे वहाँ से कमाने वहीं देने, इसी वजह से पाकिस्तान के ना अवाम की कदर है ना वहाँ के जो भी इदारे हैं वो किसी की कदर करते हैं। इदारों को क्योंकि आप सबको ये तो पता ही है कि किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अभी फजल रहमान भी कह रहा है कि इदारों को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आज पता चला, इसको अभी वो शेख के इदारों को गलत इस्तेमाल कर 76 साल से इदारे गलत इस्तेमाल हो रहे, उस वक्त तक तो कोई बात नहीं की किसी ने। अब 1-2 दिन ये बातें करते हैं, यही हालत हमारे सियासतदान, वो भी आके कभी सादिर फी कभी कोई लोग समझते हैं कि इनको अकल आ गई, वो समझते हैं कि सुबह का भूला शाम को गारा आ रहा है, अब इसको भूला नहीं कहते, मगर ऐसी बात नहीं है। इनके लिए हड्डी सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको जब हड्डी डाल दी जाती है उसके बाद फिर इनका स्टीयरिंग जिस तरह मर्जी मोड़, वो जैसे कहते नहीं वो साइकिल के तुक्के फेल हो जाते हैं, नॉर्मल पंजाबी में तो कहते हैं कुत्ते फेल हो जाते हैं, जैसे ही इनको हड्डी नज़र आती है वो फेल हो जाती है, और फिर इनको जिस तरह मर्जी वो घुमाते हैं, जिस तरह मर्जी इनको इस्तेमाल करते हैं। ये टिश्यू पेपर जिस तरह मैं आपको वॉशरूम में पड़े हुए टिश्यू पेपर की मिसाल देता रहता, मेरा ख्याल उससे भी बदतर हसीयत है। अभी जैसे जैसे सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, इतनी तकलीफ वीडियो सामने आ रही। अभी ये तो कह रहा था, खबर चलाई, वो जो टिकटॉकर था जी जो नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज से पढ़ रहा था तो टिकटॉकर था तो उसको नीचे फेंक देना। एक सवाल है, अगर वो टिकटॉकर है नमाज वहाँ पे पढ़ रहा है, आप उसको नीचे तो नहीं फेंक सकते। तो ये दरिंदों से ही बढ़ चुके हैं, ये जानवरों से बढ़ चुके हैं। इस तरह पूरी दुनिया में शदीद गुस्सा है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो भी फैसले आज तक हमारे जो मुसल्लत लोग हैं ऊपर उन्होंने किए, उससे मुल्क को तो फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कितने ममालिक पाकिस्तान से नफरत करेंगे, तिजारती मंडियाँ बंद करेंगे, कितने ममालिक जो है पाकिस्तान से तल्लुकात जो है नहीं रखेंगे, और ये दिन दूर नहीं है। अभी इन्होंने और भी इस तरह के काम डालने, थोड़े दिन इंतज़ार करें, लोग ये समझेंगे भूल जाएंगे, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। फजल रहमान भूल जाएगा, ये चोरों का टोला जो बैठा हुआ ये भूल जाएगा, मगर जितना गम इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और लोग जिस तरह के दावे कर रहे हैं, हम तो नहीं ये कह सकते, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग कत्ल हुए वो किसी जंग में नहीं हुए जितने इन्होंने मार दिए। पाकिस्तान की किसी जंग में नहीं इतने लोग कत्ल हुए, कभी बलूचिस्तान से बंदे गायब, कभी सिंध से गायब, कभी पंजाब से गायब, हर जगह से बंदे गायब हो रहे, लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा भी गायब मुर्दा भी गायब। अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि नामो निशान नहीं। जो लोग यूरोप में बैठे हुए शुक्र करें यहाँ कि यहाँ पे आप चलो अब अपना कई मुश्किलात से तो बचे हुए, मगर इन लोगों का बस नहीं चलता। एक भी केस यूरोप में हो गया जिसमें हमारी फौज मुलव्वस हुई, या ये जो चोरों का टोला है नवाज शरीफ वगैरह, उसके बाद इनका जो अशर होना वो आपको सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये यूरोप में कोई तरीका ढूंढते रहते हैं, मगर इस्तेमाल करने से डर। आपको पता कनाडा ने एक इंडियन की वजह से इंडिया के साथ तल्लुकात ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पे फिर भी आप कुछ ना कोई बेहतर ज़िंदगी गुजार। नाज़रीन,
लोग कहते हैं दुआ करें, ये करें, वो करें, मगर दुआ के साथ अपनी हालत भी बदलनी पड़े। गौर करें क्या कमज़ोरियाँ हैं जिसकी आज कौम को सज़ा मिल रही है, क्या वजह है, कौन सा ऐसा गुनाह कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर, आज क्या हालात रहे? सुना था कि कोई हड़ताल वगैरह होगी पाकिस्तान में। जी, वो ये जो वाकयात हुए हैं सारे, ये जो पीटीआई की एहतजाज की वजह से जो सारे मामलात हुए हैं, तो उस आने के बाद ये इतलात आ रही थी कि यहाँ पर एक हड़ताल को की जाएगी। तो पीटीआई ने तो वज़ीर-ए-आला जो खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने तो 3 दिन के शोक का ऐलान किया था कि आज असेंबली में उनके पास किया था कि 3 दिन का शोक जो है वो मनाया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज के ऊपर मज़ीद है कि हम बहुत देर से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला को मौका दे रहे हैं, लेकिन वो बारहा हमारे ऊपर हमला करते हैं, इस्लामाबाद में धावा बोलते हैं। तो हम इस कोशिश के ऊपर हैं कि हम जो है इसके ऊपर गवर्नर राज को लेके आए। तो इसी तरह जो 2 बड़े उनके अहदेदार थे, शौकत यूसुफजई और साथ में सेक्रेटरी जनरल जो थे राजा साहब, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। तो इस वक्त 2-3 बातें बड़ी सामने आई है कि एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर एक जो कोर कमेटी है, ये जो इनके आपस में राब्ते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है कि ये सारे मामले क्यों हुए हैं। उसके अलावा जो जख्मी और गिरफ्तार अफराद हैं, उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर हड़ताल की कॉल देना और सारे मामला को करना, ये भी एक आप ये समझते हैं कि इतनी ज्यादा अहमियत वाली बात नहीं है। सर, ये बताइए कि अवाम क्या कहती है कि इतना बड़ा जुल्म इस्लामाबाद में हुआ, पब्लिक के क्या तासरात हैं? पब्लिक तो यही कहती है कि आपने सब देखा होगा कि एक शख्स जो है वो कंटेनर के ऊपर तीन कंटेनर रखे हुए हैं और वहां पर वो नमाज अदा कर रहा है और बैठा हुआ है। तो रेंजर्स वाले जो है और उसने आके तो उनको गिराया है नीचे, और बकायदा तो ये एक वीडियो बनी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था। उसके उन्होंने सर्च ऑपरेशन करने के जरिए उनको सारे इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को एक साइड पे करने के बाद जो हमारे पास इसकी जो तफसीलात आ रही है, जो एक तो हमने फुटेज देखी है, उसके अंदर तो ये दिखाया गया है, जो हमें आवाज सुनने में आई है कि बिल्कुल ब्लैक आउट हो चुका है और उसके बाद एक हैवी मशीन गन से फायर किए जा रहे हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी जगह पे एक जंग का माहौल है, बहुत ज्यादा फायरिंग और कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही है। तो ये जो शरपसंद, ये तो अब शरपसंद कहते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि इमरान खान के जलसे में जो गैर मुल्की अफराद शामिल थे, जिसके अंदर उन्होंने ये इस बात को वादे किया है कि अफगानिस्तान से कुछ लोग थे जो असले के साथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने आगे यहाँ पे शरपसंदी की है। जबकि अगर किसी को एहतजाज करने का मौका दिया जाता भरपूर तरीके से, जिस तरह पहले इमरान खान साहब ने धरना भी दिया था और दारुल काजी साहब ने धरना दिया था, तो इस तरह धरना देने में कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार है, क्योंकि जिस तरह फायरिंग की गई है और लोग जख्मी हैं और जो कुछ अफराद ऐसे हैं जो बिल्कुल भी जिनकी वफात हो चुकी है, तो उनके जो घर वाले और लवाहे की ना, वो इस बात के ऊपर मजीद है कि हम बताएं हमारे जो अफराद थे, अहले खाना थे, वो तो जमहूरियत के लिए, अपने हक की आवाज के लिए बाहर निकले थे। उनको किस बर्दाश्त में किसने कत्ल कर दिया, क्यों मार दिया? तो ये बात एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो इसकी जो ज्यादती है, ये आप इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात उठाई जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक अच्छा फेर अदा नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पता लगा है कि इसके ऊपर एक नोटिस लिया है। तो बहरहाल देखना ये है कि गवर्नमेंट किस तरह इस सारे मामला को फेस करती है। सर, ये बताइए कि अगर किसी और ने ये काम किया होता तो हॉस्पिटल में फिर क्यों लोगों को पकड़ते, जिस तरह वो सहाफियों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई और किया होता तो इसका ज़ाहिर है फिर सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाना था। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी बतीउल्लाह जान, जो कि अपना एक चैनल बना रहे हैं, साथ चैनल के अटैच भी है, और उन्होंने इस बात की एक दफ़ा निशानदेही की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी बात है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने बताई थी कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि इस सारे ये जो
रैलीज निकाली गई है या जो जुलूस निकाला गया है, इसके अंदर हम रेंजर्स को और जो आर्मी के अफराद है उनको निशाना बनाएंगे। उसके बाद जो सारा ब्लेम है वो पीटीआई के ऊपर चला जाएगा और पीटीआई को हम कदम करार दे के दहशतगर्द तंजीम करार दे के हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसकी पदार्थ के अंदर वजीर जान के ऊपर जो है बकायदा FIR हुई और उसके बाद 2 दिन का रिमांड भी लिया गया जिसके ऊपर उनको जेल में जी उनकी गलती ये थी कि इन्होंने ये बात क्यों कही सबके सामने। तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो बिल्कुल, आप जरा ये मोबाइल ठीक कर लें थोड़ा सा। अब आपको आवाज आ रही है? जी जी। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इस परेशानी का शिकार है कि जो हमने ये काम किया है, लोग सारे यही बातें कर रहे हैं कि आपने जमहूरियत के ऊपर जो शब खून मारा है, आपका काम बनता था कि आप उनको धरने की अगर कॉल दी गई थी या उनको डी चौक में जाना था या संगजानी जाना था तो आप उनको जाने देते। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है कि उनको बतौरे जो है एक पावर उठाकर उनके ऊपर फायरिंग करके उनको जख्मी करके, तो इसके बाद हुकूमत एक बहुत ज्यादा जो है इंटरनेशनल तौर पर भी, ह्यूमन राइट्स के तौर पर भी एक तनकीद का शिकार है। सर कितने लोग जान से गए अभी तक? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ दावे हैं, कोई कह रहा 700, कोई कह रहा 250, कोई कह रहा 300। जी, जो पॉली क्लिनिक से रिपोर्ट्स मिली थी जख्मियों की, वो तकरीबन 230 के करीब अफराद हैं जो जख्मी होकर वहां पर आए गए थे। उसके अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल है एक उनका इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसके मुताबिक वहां पर 92 अफराद जो जख्मी आए गए थे। उसमें से ये बताया जा रहा था कि जो ज्यादा सीरियस है, जिनको इंजरीज हुई है, वो तकरीबन कुछ 70 से 72 अफराद है जिनको ये इंजरीज हुई है। लेकिन जो डेथ टोल जो बताया जा रहा है, जो गैर तस्दीक शुदा, ये जो इनके जराये से हमारी बात सामने हुई है, वो तकरीबन वो बता रहे हैं कि 2 से लेकर 250 के करीब अफराद जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जो इस सारे हादसा में जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं। लेकिन सरकारी तौर पे ये सारे अदादो शुमार को छुपाया जा रहा है ताकि ये बात सारी मंजर आम पर ना आ सके या इस तरह की बात सामने ना आ सके, ताकि जिससे ये बात फिर सामने आ जाएगी कि अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर ये अफराद की इनको मारा गया है, इनको कत्ल किया गया, तो इसके लिए फिर एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ जाती है। लेकिन जो अभी तक हॉस्पिटल के जराये हैं वो बिल्कुल भी किसी बात की तस्दीक करने से कासिल है। ये तो वो जराये हैं जो मीडिया के जराये हैं, ये जो हॉस्पिटल के अंदर उनके अपने जराये हैं, उनके बाद ये तकरीबन 250 के करीब 230 के करीब अफराद है जिनको अभी तक जहाँ बाग हो चुके हैं। सर अवाम देख रहे हैं आपके अब इस हालात में पीटीआई को कोई मायूसी होगी या हौसले बुलंद है उनके? देखिए फिलहाल पीटीआई के जो वर्कर्स हैं अभी तक तो वो इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज है और इस बात के ऊपर बहुत गुस्से में है कि जी जब कुछ लोग कहते हैं कि जी लीडरशिप को एक जगह मखसूस की गई थी तो उन्होंने वहां पर क्यों नहीं किया, और दूसरी जो लीडरशिप थी उसने टी चौकी का क्यों आगाज किया, और अगर टी चौक में आगाज किया था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो बुशरा बीबी है उनका पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान साहब की आइडिया है। लेकिन उन्होंने किस हैसियत से फैसला करके डी चौक के अंदर तमाम अफराद को वहां पर आने के लिए इकट्ठा किया, और ये जो अली मीर गंडापुर जो है वज़ीर KP के, अगर उनका रास्ता अंदर इमरान खान साहब से हुआ था तो उन्होंने जो जगह इमरान खान साहब ने बताई थी वो क्यों नहीं की। तो असल वजह ये है कि इन सारी वजूहात की वजह से लोगों में खासा जो है अभी तक गुस्सा इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि वहां पर काफी लोग हैं जो किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का कजन है, किसी का बाप है, जो इस सारे हादसे में जख्मी हो चुके हैं या जाँ बहक हो चुके हैं, क्योंकि वो तो अपने लीडर की कॉल पर बाहर निकले थे। वो तो इसलिए कॉल पर क्या आवाज कर लें जरा, मोबाइल ठीक कर लें, पता नहीं आज क्या वजह है, वो इंटरनेट प्रॉपर से नहीं आ रहा। अब आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा सर ये बताइए, इस वक्त ये खबर भी हमारे पास है कि कल फिर अहमदिया मस्जिद के ऊपर कोई हमला हुआ। ये 2 वाकयात हैं जो कि 2 से 3 दिन रोज पहले हुए थे। एक सियालकोट का इलाका है कखा वाली जी, तो वहां पर 26 तारीख तकरीबन 25 से 26 की दरमियानी रात को 3 बजे के करीब जो है वो ये वाकया पेश आया कि वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है वहां पर पुलिस है और साथ तकरीबन जो उनके लोग थे कोई 15 से 20 अफराद थे जो सिविल कपड़ों में थे, वो वहां पर मौजूद रहे हैं और उन्होंने पुलिस ने अपनी मौजूदगी में वहां पर जो इनके मीनार और मेहराब थे उनको तकरीबन तोड़ने के बाद गिरा कर जो सारा मलबा वगैरह था वो सारा सामान वहां से इकट्ठा किया
اور وہاں سے پھر وہ اپنے ساتھ ٹرالیوں میں رکھ کر وہ لے گئے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو تھا وہ فیصل آباد کا ایک نواحی گاؤں ہے 27 میں، تو وہاں پر بھی تقریباً صبح کے ٹائم ایک واقعہ جی پیش ہے کہ موٹر سائیکل سوار 20 سے 25 افراد جو موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے۔ وہاں پہ جو دروازے شیشے اور املاک کو خاصا نقصان پہنچایا اور اوپر میرا چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور پولیس کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ سارا 1-1.5 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام کر لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ککھا والی سیالکوٹ میں، وہاں پر ایک شخص ادریس نامی شخص ہے جس نے یہ درخواست دی تھی تھانے میں کہ یہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو جب پولیس نے ان لوگوں کو بلایا تو ان لوگوں نے آگے یہ بتایا تھا کہ یہ جو عبادت گاہ ہے یہ 1984 کے آرڈیننس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، اور گاؤں کے لوگ بھی اس وقت ان کے ساتھ شامل ہو کے جو متعلقہ جو وہاں پر قادیانی انتظامیہ کے لوگ تھے اور وہاں کے لوکل گاؤں کے لوگ تھے وہ پولیس کے پاس گئے ہیں اور پولیس کو یہ باور کرایا ہے کہ ہم یہاں پر پرانے رہنے والے گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے درخواست دی تھی وہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا، وہ دوسرے گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن پولیس نے پھر بھی ان کے ایمان کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کام کر دیا۔ سر یہ بتائیے، یہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ آپ نے جس طرح بتایا موٹر سائیکلوں پہ آئے اور حملہ کر دیا، تو وہاں پہ جو مسجد میں لوگ تھے وہ موجود نہیں تھے کوئی بھی؟ اس وقت صرف جو ہمیں اطلاعات ملی تھی وہاں پر 2 افراد موجود تھے جو، لیکن اس وقت جس وقت حملہ کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے جب توڑ پھوڑ کی ہے تو گاؤں کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، ان کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر ضد کی کہ آپ یہاں پر کیوں حملہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ وہاں پر 1-5 پہ کال بھی کی گئی جو اندر لوگ تھے، لیکن اس وقت انہوں نے پتھراؤ کیا اور وہ تقریباً ڈنڈوں اور آہنی جو وہ کہہ سکتے ہیں اب راڈ ان کے پاس سے انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی۔ تو وہ ایک پلان کر کے جس طرح نظر آ رہا تھا کہ پلان کر کے صبح 11 بجے آئے ہیں، ٹھیک ان کے کام کرنے کے بعد جیسے ہی ان کا یہ کام ختم ہوا ہے تو اس کے کام کرنے کے بعد ہی پولیس وہاں پر پہنچی، حالانکہ یہ کام کوئی 2, 4, 5, 10 منٹ کا کام نہیں تھا، اس کو کم از کم پونا گھنٹے کے قریب یہ سارا یہ واقعہ چلتا رہا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس وقت مسلح جو شرپسند عناصر تھے وہ مسلسل اس کے اوپر جو ان کی عبادت گاہ تھی اس کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ جو اندر افراد تھے وہاں ہمیں جو اطلاعات ملی تھی کہ اندر سے کسی شخص کو زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن وہ وہاں سے جس وقت یہ سارا حملہ ہوا ہے تو وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ بہت شکریہ سر۔ سوری معذرت چاہتے ہیں، آج آڈیو میں کچھ پرابلم آ رہی تھی پاکستان میں، آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات انٹرنیٹ کے ہیں۔ تازہ صورتحال ابھی آپ نے سنی، ایک خبر چل رہی ہے اور وہ 12 فوجی جو ہے وہ شہید آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اور پھر پاکستان کے اگر فوجی وہ شہید ہوئے اور وہاں پہ خوشی منائی جا رہی، تو فرق دونوں پارٹیوں میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو بھی میرا خیال ہے افسوس نہیں، احساس نہیں، لیکن ہر ایک انسان کی جان قیمتی ہے۔ اور جو لوگ اعتراضات یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ فوج جب بارڈر پہ لڑنا پڑتا ہے تو پھر ان کو پریشانی بن جاتی، وہاں لڑ نہیں پاتے، کیونکہ 6 دہشت گرد بتایا جا رہا ہے اور 12 فوجی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ کتنی طاقتور فوج ہے ہماری۔ ناظرین، مذہبی نفرت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے ابھی، جس طرح ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے، اور آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، پولیس بھی ساتھ ملوث ہوتی ہے، وہ علماء بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 74 سے پہلے جس طرح ابھی بیورو چیف بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو ابھی بھی کوئی اعتراض نہیں، لوگ اکٹھے رہتے تھے، کسی کے غم میں خوشی میں بھی شریک ہوتے تھے، احمدی بھی دوسرے لوگ بھی۔ آہستہ آہستہ یہ جو فرقہ وریت شروع ہوئی، آپ سب کے علم میں ہے، شیعہ سنی فسادات، یہ جو احمدیوں کے معاملات ہے، ان کی مساجد کو نقصان پہنچانا، کلمہ طیبہ مٹانا، اور یہ دیکھ لے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک طرف انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، مذہبی طور پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس ملک کا اللہ مالک ہے، 27 ممالک نے عمران خان کے حق میں بیانات دیے، اور اس وقت تیاری کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ میں یہ کیس لے کے جایا جائے، اور چیف آف آرمی سمیت جتنے بھی لوگ تھے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کے اثاثے جو ہے وہ بھی قبضہ کیا جائے۔ اس پر پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے
وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے، بڑے زبردست وکلا ان کے پاس ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ٹرک وغیرہ بھی کھڑے کرنے کا پروگرام بن رہا ہے، مختلف جگہ پر ٹرک کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ جو خون بہایا گیا ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسانیت شرما گئی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔